یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار واقعات، گرتوں کو اٹھانے والے نبی، روتوں کو ہنسانے والے نبی، میدان محشر میں کام آنے والے نبی، ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آواز بلند کر دیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، بے ایمانوں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے رب نے فرمایا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، غور سے سنیے گا، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، بچاؤ اپنی اولاد کو، بچاؤ اپنی بیوی کو، بچاؤ اپنے پڑوسی کو، کس سے؟ اس جہنم کی آگ سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، کیا آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ میرے بھائی آواز بلند کر دیں، آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتائیے گا، ہم میں سے کتنے لوگوں کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی؟ اگر ہمارے دل میں میرے رب کا خوف ہوتا تو کیا ہم عشاء کی نماز چھوڑتے، فجر کی نماز چھوڑتے، ظہر کی نماز چھوڑتے، عصر کی نماز ترک کرتے، مغرب کی نماز چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑتے؟ آج مسجد بنانے کی بات ہو رہی ہے، الحمدللہ آج اس گاؤں میں دیکھا جا رہا ہے، ایک آدمی کے گھر میں ڈبل مالے کی بلڈنگ ہے، ان کے گھر میں سنگ مرمر لگا ہے، ان کے گھر میں ٹائلز لگا ہے، ان کے گھر میں بہترین چیزیں لگی ہے، لیکن اللہ کا گھر وہیں پر ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف ہوتا تو ایک بیٹا دلی میں کما کر اپنے گھر کو ڈبل مالا بنا لیتا ہے، تو پورے گاؤں کے نوجوان مل کر چاہتے کہ ہم اللہ کے گھر میں ٹائلز بھی لگائیں، ماربل بھی لگائیں، متحد ہو جائیں، تو اللہ کا گھر ایک مہینے میں تعمیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں عبادت کے لیے شوق اور شوق آدمی جا کر اپنی پیشانی جھکا بھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ۔ آواز جیسی تھی ویسی کر دیں۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، اللہ کا گھر پورے گاؤں مل کر نہیں بنایا جا سکتا ہے، پورے معاشرہ اور پورے جو ہے علاقے کے لوگوں کے گھروں میں جا کر ہم چندہ کرتے ہیں، پھر بھی ایک مسجد تعمیر نہیں کر پاتے ہیں۔ کیا اگر ہم نے سوچ لیا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ کے گھر کو بنانا ہے، کبھی انسان یہ تصور کر لیتا ہے تو پھر خدا کی قسم ایک روپے بھی جمع کر لے تو مسجد کی تعمیر بھی ہو جاتی ہے۔ آج مسجدیں ہم بنا لیتے ہیں لیکن مسجد کو آباد نہیں رکھتے۔ اگر ہماری کھیتیاں جل جائے تو ہم کہتے ہیں مولا میری کھیتی جل گئی ہے، مولا میری دکان برباد ہو گئی ہے، مولا میرا مکان تباہ ہو گیا ہے، مولا میرے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، مولا لاک ڈاؤن ہے، اب سارا پیسہ آنا بند ہو گیا ہے۔ اگر میرے رب نے تم سے پوچھا اے میرے بندے یہ تو بتا تیرے گاؤں میں میرا بھی گھر ہے، تو نے چھانک کر دیکھا ہے، تو تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر آباد رہے تم اللہ کے گھر کو آباد کر دو، مولا تیرے گھر کو آباد۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ فلاح اور بہبودی ملے تو اللہ رب العزت کے سچے بندہ جو ہے بننے کی کوشش کرو۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، اگر سوچا جائے اور اگر آپ کے سامنے بات بتائی جائے تو ایک آدمی اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، جو انسان خود کو نہ بچا پائے وہ معاشرے کو کیا بچائے گا؟ جو انسان خود کو نہ بچائے وہ بیوی کو کیا بچائے گا؟ جو انسان خود نہ بچ پائے وہ ماں کو کیا بچائے گا؟ جو انسان خود نہ بچ پائے وہ اپنی بہن کو کیا بچائے گا؟ میری بہنوں سن لو، تم بھی کان کھول کے سنو اور آپ بھی کان کھول کے سننے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ زندگی تمہاری بڑی زندگی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس زندگی میں جو ہے عیش و عشرت کر کے اپنی زندگی نہ گزارو، مکاری میں زندگی نہ گزارو، فریب کاری میں زندگی نہ گزارو،
दगाबाजी में अपनी जिंदगी ना गुजारो। इंसान कहता है मैं तो ताकतवर हूं, मैं तो कुव्वतवर हूं। कुरान में फरमाता है खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है। ऐ इंसान तू तो इतना कमजोर है, तेरी आंख बंद हो जाए, तेरी बेटी तेरी सिराने पे रोती रहे तो उसके आंखों का आंसू पोंछने की ताकत भी तुझमें नहीं है। आखिरी मर्तबा गुस्ल करने की ताकत तुझमें नहीं है। आखिरी मर्तबा को अपना कपड़ा पहनकर, कफन का जोड़ा पहनकर कब्रिस्तान जाने की ताकत भी तुझमें नहीं है। तू गुरूर क्यों करता है, तू तकब्बुर क्यों करता है, तो अपने आप को बड़ा रुस्तम और पहलवान क्यों समझता है। इसीलिए बड़े लोग क्या करते थे, हमारे असलाफ क्या करते थे, बुजुर्गाने दीन क्या करते थे। जब इंसान को गुरूर आता था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर से निकलकर वो कब्रिस्तान चले जाते और कब्रिस्तान में जाकर हाथ बांधकर अमीक नजरों से कब्रों की तरफ देखते और सोचते अरे मैं क्या ताकतवर हूं, मुझसे ज्यादा ताकतवर को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने गिजा बना लिया है। जमीन ने उसको मिट्टा मेल कर दिया है, जमीन ने अपने आप के अंदर उसे बराबर कर लिया। कौम के दयालु मुसलमानों, अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि रब फरमाता है माइक वाले भाई सिर्फ आवाज खींच रही है, आवाज यहाँ बुलंद कर दें, बाहर क्या हो रही है कोई मतलब नहीं है, आवाज जाती कि नहीं जाती है कोई मतलब नहीं है। जलसे में पहले से 1 महीने से ऐलान किया जाता है, लोग जलसे में आते भी हैं, लेकिन लोग समधी के चक्कर में आज जलसा सुनने के लिए अपने घर से नहीं आ पाते हैं। एक समधी आज बातें करेगा, बहने भी आज बात करेगा, सन भाई आज बात करेगा, रिश्तेदार आज बात करेंगे, मामू है उसको खाना खिलाने में जलसा खत्म हो जाता है। मुफ्ती साहब की तकरीर रह जाए कोई परवाह नहीं, कारी साहब की तकरीर रह जाए कोई परवाह नहीं, पीर साहब की तकरीर रह जाए कोई परवाह नहीं। ऐ मुसलमान, तू किसी का बनता न बन, लेकिन अपना तो बनकर दिखा दे। जब इंसान अपना बन जाएगा तो वो इंसान सोचेगा मेरी कब्र में मेरा बाप नहीं सोएगा, मेरी कब्र में मेरी माँ नहीं रहेगी, मेरी कब्र में मेरा दोस्त नहीं रहेगा, मेरी कब्र में मेरे आमाल रहेंगे। तो अपने गिरेबान में झांको कि हमने अपने दामन में कितने अमाल अच्छे किए हैं, कितनी नेकियां अपने पास इकट्ठा की है। सुनिए, 2 बातें याद रखिएगा, ये 2 बातें जो इंसान याद रखेगा वो इंसान कभी नाकाम नहीं होगा। ये 2 बातें क्या है, एक तो ये है कि हम सबों पर जितने भी लोग यहाँ हैं, मेरी माओ तुम भी सुनो, मेरे भाई तुम भी सुनो, मेरे चचा तुम भी सुनो, मेरे रफीक तुम भी सुनो, मेरे शफीक तुम भी सुनो। पहली बात यह है हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अल्लाह के जितने बंदे हैं, हम अल्लाह के हर बंदे पर अल्लाह का हक है जिसे हक़ुल्लाह कहा जाता है। आदमी सोच ले अल्लाह का मुझ पर हक है, कितना हक अल्लाह का है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब आएंगे तो गिनवाने की कोशिश करेंगे बंदों पर अल्लाह का कितना हक है। आप एक हक देख लें, ये हक क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आंख दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कान अता किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जबान दी है, अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैर दिया है। आज दिल्ली से आकर नौजवान घर में आता है और उसकी माँ कहते बेटा कहाँ जा रहा है, तो माँ से कहता है माँ मैं बियर बार की तरफ जा रहा हूँ, शराब पीने जा रहा हूँ, बियर पीने जा रहा हूँ। ऐ नौजवान शर्म नहीं आती है, तुम्हें पता नहीं है मेरे मुस्तफा की हदीस क्या बताती है, मेरे मुस्तफा का कानून क्या बताती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में क्या फरमा रहा है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों जरा गौर करो ना, आज का नौजवान समझता नहीं है, वो नौजवान सोचता है यही दुनिया मेरी सब कुछ है, यही दुनिया की जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है, यही दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है। यहाँ से तुम्हें पलट कर जाना भी है, अपनी कब्र में पहुंचना भी है, आखिरत में तुम्हें जवाब भी देना है, कब्र में तुम्हें जो है सजा भी मिलने वाली है। आप न दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं न आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं। पहला यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम सबों पर हक है। जब इंसान सोच लेगा अल्लाह का मुझ पर हक है, ये आंखें मुझे रब ने क्यों दी है, ये जबान मुझे क्यों दी है, ये कान मुझे क्यों दिया है, ये पैर मुझे क्यों दिया है, ये ना कहना ये पैर इसलिए दिया है कि खेतों में जाए और ट्रैक्टर चलाए और बैल से जो है हल जोतते रहे, पैर इसलिए मिला है नहीं। पैर अगर मिला है तो अल्लाह के घर में जाने के लिए मिला है, पैर मिला है नेक
काम के लिए जाने के लिए मिला है, पैर मिला है अल्लाह वालों के बारगाह में जाने के लिए मिला है, पैर मिला है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाकर अपनी पेशानी झुकाने के लिए मिला है। यह ज़बान क्यों मिली है? अगर यह ज़बान कुरान की तिलावत नहीं कर रही है, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ रही है, नाते नबी नहीं पढ़ रही है, अल्लाह उसके रसूल की बातें ज़बान से नहीं निकलती है, तो तुम्हारी ज़बान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हक अदा नहीं कर रही है। आपके कान दिन भर ग़ीबत सुनता रहे, लोगों की चुगलखोरी सुनता रहे, इसकी उसकी बातें सुनता रहे, तो तुम्हारा कान खुदा के अहकाम से गाफिल है, तुम्हारा कान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक बजा नहीं ला रहा है। अगर तुम्हारा पैर अल्लाह के तरफ नहीं जाए तो तुम्हारा पैर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से नहीं कांप रही है, और जिस काम के लिए अल्लाह ने पैर दिया है वो काम में आप नहीं लगा रहे हो, तो कमा हक कहो, अल्लाह का हक तुम नहीं अदा कर रहे हो। आज देखा जा रहा है, आज पूरे माशरे का और पूरी सोसाइटी का और पूरे समाज का जायजा लिया जाए। आज हमने देखा है, अगर कोई बीवी हमारे इलाके में देखे हैं, पूरे उत्तर दिनाजपुर में बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा होता है कि बीवी को लोगों ने तलाक दिया है, छोटी छोटी बातों पर बीवी को तलाक तक दे देते हैं, वो सोचते भी नहीं है ये बीवी तो प्यार करने की चीज है, ये बीवी तो मोहब्बत करने की चीज है। लेकिन मेरी बेटियां भी ये है कि अपने शोहर के लिए कभी तैयार नहीं होती है, अपने शोहर को खुश करने के लिए, शोहर को राजी करने के लिए कभी वो तैयार नहीं होती है, लेकिन सन भाई के लिए वो तैयार होकर बैठती है, बहनवी के लिए वो तैयार होकर बैठती है। ऐ मेरी बहनों सुनो, तुम्हें कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा तुम्हें देख रहा है, मेरे नबी तुम्हें देख रहे हैं। अफसोस की बात है, माशरा कहाँ चला गया, सोसाइटी कहाँ चली गई, हमारा कल्चर कितना बिगड़ गया। आज जिसको भी देखें हर आदमी होशियार अपने आप को कहलाता है, अपने आप को दानिश्वर कहता है। पहली बात आप सुने, अल्लाह का हम सबों पर हक है। जिस दिन हम अल्लाह के हक को अदा करने लग जाएंगे, खुदा की कसम, मेरा खुदा जिस दिन बंदों से प्यार करता है उससे सारी कायनात का जर्रा जर्रा प्यार बहुत उम्दा, करके तो देखो, अल्लाह के बनकर तो देखो। पहली बात हक़ुल्लाह है, यानी अल्लाह का हक हम सबों पर है, अल्लाह का हक पहले हम अदा करने की कोशिश करें। दूसरा हक क्या है? बंदों का बंदों पर हक है, यानी हक़ुल इबाद। आज हम कब्रिस्तान में जब चचा मर जाते हैं, दादा मर जाते हैं, नाना मर जाते हैं, कोई मर जाते हैं, तो कब्रिस्तान में मुफ्ती साहब से कहते हैं, मुफ्ती साहब ऐलान कर दीजिए, अगर किसी का लेन देन है तो उसका बेटा उसे अदा कर देगा, अगर किसी को तकलीफ दिया है वो माफ कर दे। क्या तुम्हें दुनिया ही में बेहिसाब रखे जाना है? नहीं, बल्कि दुनिया ही में आप देख ले, क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, मैंने किसी की जमीन पर नागन सांप बनकर उसकी जमीन पर बैठ तो नहीं गया हो, यानी जमीन किसी की है, LR में अपना नाम तो नहीं कर लिया हो, RS में अपना नाम तो नहीं चढ़ा लिया हो। इंसान जरा गौर तो कर ले, दुनिया ही में रहकर बंदों का हक अदा कर दे। फिर देख, आज एक हाजी साहब राजस्थान में गया था गुज़श्ता साल, गालिबन 3-4 साल पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिला पाली के अंदर जालोर के करीब में एक चचा थे, 3 वक्त की नमाज मस्जिद में दोनों साथ में पढ़े। वो हाजी साहब कहते हैं, हजरत बात इतनी सी है, आपकी बारगाह में अरीजा पेश करता हो, मेरा बेटा मिलने के लिए आएगा, उसे समझा दीजिएगा, मेरे बेटे ने मेरी नाक कटा दी है, मेरे बेटे ने मेरी इज्जत को पामाल कर दिया है। मैंने कहा हाजी साहब क्या हो गया है? हाजी साहब ने कहा देखिए, मैं हज करके आया हूँ, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, तहज्जुद भी मैं पढ़ता हूँ, इशराक और चाश्त की भी नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा सट्टा खेलता है, मेरा बेटा पत्ता खेलता है। और हक तो ये हो गया, आज लोगों को सट्टा खेलने की भूत इस कदर सवार है, बूढ़े बूढ़े लोग जिसके चेहरे में दाढ़ी है, सर को छुपाकर दाढ़ी में कमरे बांधकर वो भी सट्टा खेलने लगता है। वो सोचता है 1000 रुपए का सट्टा लग गया, करोड़ों की मिल्कियत का मालिक हो जाऊंगा। इंसान, अगर करोड़ों रुपए तेरे पास आ जाए, वो दौलत तेरी नहीं है, आग बंद होने के बाद ये दौलत तेरा बेटा हिस्सा ले लेगा, तेरी बेटियां ले लेगी, ये दौलत तेरी नहीं है। तेरे साथ अगर जाएगा तो तेरा अमाल जाएगा, तेरी नेकियां तेरे साथ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। किरदार बेहतर बनाने की कोशिश करो। आज लोग सट्टा खेला करते हैं, पत्ता
पत्ता खेला करते हैं। हाजी साहब ने कहा था, मंजर नवाज साहब आप बंगाल से आए हैं, जिस तरीके से हम बाहर के खतीबों को, बाहर के शायरों की इज्जत करते हैं, हम लोग भी बंगाल से जाते हैं, मुफ्ती साहब जाते हैं, बड़ी इज्जत होती है। मैं जानता हूं इज्जत दुनिया वाला नहीं दे सकता है। पूरे इलाके में उत्तर दिनाजपुर में जितनी हसद की बीमारी है, जलन की बीमारी है, बुक्स की बीमारी है, कीना की बीमारी है, हमारे उत्तर दिनाजपुर में इतनी कैंसर की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। खुदा की कसम इतनी बीमारी हसद और बुक्स की। कोई अच्छा इदारा चलाए मुफ्ती साहब तो हम वहीं जाकर एक इदारा कायम करना चाहेंगे ताकि वो डाउन हो जाए। मैं कहता हूं पूरी दुनिया पड़ी हुई है, करना आके मिल तो जा, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात याद आई है। उसने कहा कि हजरत क्या बताएं, मेरा बेटा मेरा नाक काट दिया है, मेरी इज्जत पामाल कर दिया है। मैंने कहा कि आप ये मुझे क्यों सुनाते हैं? कहा मेरे बेटे को कहिए कि तुम्हारे बाप का तुम पर हक है। मैंने कहा याद रखिए चाचा, जिस तरीके से बाप का बेटे पर हक है तो बेटे का भी बाप पर हक है। क्या तुमने अपने बेटे का हक दे दिया? उसने कहा हाँ हाँ मैंने अपने बेटे का हक अदा कर दिया, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, क्या नहीं दिया? मेरे बेटे के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे बेटे के पास बेहतरीन लिबास है, मेरे बेटे के पास जो है टीवी है, VCR है, मेरे बेटे के पास बड़ा मोबाइल है, मेरे बेटे के पास कारोबार है, हमने तो सब दे दिया है। मैंने कहा आपने कुछ नहीं दिया। खुदा की कसम जिस दिन आपकी शादी हुई थी, आप पहली दुल्हन से मिलने गए थे, सच बताइएगा पहला निवाला जो अपनी बीवी को आपने खिलाया था वो हलाल था या हराम था? हाजी साहब की सर नीचे हो गया। हाजी साहब ने कहा हजरत मैं पीछे पलट कर देखता हूँ, खुदा की कसम पहला निवाला जो मैंने बीवी को खिलाया था वो हराम था। मैंने कहा पहला निवाला बीवी को हलाल खिला दिया होता, तेरा बेटा शराबी नहीं होता, वक्त का वली कामिल का गुलाम हो जाया करता, उलमाए किराम का चाहने वाला हो जाया करता। तो आज हम लोग हराम खुद भी खाते हैं, हराम दूसरों को भी खिलाते हैं। आज जलसों में भी कहा जाता है आइए ना बैठिए ना, आइए मुफ्ती साहब की तकरीर बैठिए ना, पीर साहब की तकरीर बैठिए ना। मैं कहता हूं जिस दिन हम हलाल खाने लगेंगे किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी, आके बैठ जाओ। जो 20 किलोमीटर की दूरी से जलसे में आ सकता है तो मुस्तफा का गुलाम बनकर अपनी आखिरत को संवार भी सकता है। कौम के दयालु मुसलमानों, देखें एक नुक्ते की बात यहाँ याद आई है। मैंने कहा हाजी साहब आपने अपने बेटे का हक नहीं अदा किया। अगर आप अपने बेटे का हक अदा कर देते, बीवी का हक अदा कर देते, बेटी का हक अदा कर देते तो आज आपकी बेटी आपके सामने भागने की जो है आपको धमकियां नहीं देती। अगर आप अपने बेटे को अपना हक दे देते तो आज आपका बेटा शराबी और जुआरी और मक्कारी नहीं होता, आज आपका बेटा आपका वफादार हो जाता। आज जरा सुनने की कोशिश करें, मुझे एक बात याद आ रही है। आज मेरी बेटियों पर मुझे रोना आता है। बाजारों में देखो तो मेरी बेटियां सर के ऊपर से दुपट्टा हटा लेती है और कांधे पे दुपट्टा लेके घूमती है। हमारी बेटियों को शर्म नहीं आती। हमारी बेटियां किसी मज़ारात पर उर्स हो, हमारी इतनी बेटियां मज़ार पे जाने लगती है। मुफ्ती साहब कहने लगे तो मुफ्ती साहब को कहते हैं मुफ्ती साहब किस किस को रोकेंगे? मैं कहता हूं देखिए एक अच्छा तरीका मैं बताता हूं, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ताला लगा दे, अपनी बेटी को कहे बेटी तू मज़ार पे जाने के लिए नहीं है, अल्लाह तौफीक दे दे तो मदीनतुर रसूल में गुंबदे खजरा देख लेना, उसके अलावा किसी मज़ारात पर कोई औरत नहीं जा सकती है। आप अपने घर की बेटी को रोक लें, अपनी बीवी को रोक लें, अपनी माँ को रोक लें, अपनी बहन को रोक लें, हर आदमी अपने अपने घर को रोक ले तो याद रखे हमारी एक भी बहन मज़ारात के लिए नहीं जाएगी बल्कि मुसल्ला बिछाकर इबादत इलाही में मुस्तगर्क हो जाएगी, हाथ उठाकर दुआ करेगी, उसका बेटा उसका वफादार बनता हुआ चला जाए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, इस्लाहे मौशरा पर एक बात मुझे याद आती है हजरत अल्लामा मौलाना मंजर आलम साहब से। वो मेरे मीता भी हैं, यहाँ के इमाम भी हैं। एक बात मुझे याद आती है, मेरी बहनों मेरी माओ सिर्फ इस बात को गौर से सुनिएगा। एक शख्स का नाम है नूह। क्या नाम है? नूह। और उसकी बेटी का नाम है फातिमा। क्या नाम है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी जमाना है, कयामत की सुबह तक जितना जमाना है ये मेरे मुस्तफा का। लेकिन नूह क्या था? जज था।
اس کی بیٹی فاطمہ، اور اپنے گھر میں اس نے ایک نوکر رکھا، نام تھا نوکر کا مبارک۔ المختصر سنیں، نوکر کا نام مبارک تھا۔ آج میری بیٹیاں اپنی چلانے کی کوشش کرتی ہے، آج میرے چچا اپنے برابری کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑا جج تھا، اور جب آدمی محنت لگن سے کام کرتا ہے تو پرموشن پہ پرموشن ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی کو آگے کی کرسی ملتی چلی جاتی ہے۔ وہ انسان جسٹس بن گیا، اس قدر اعلیٰ عہدے میں پہنچا، تو بیٹی جوان ہوئی، مبارک گھر میں کام کرتا، نوکر تھا۔ اب وہ جسٹس نوح نے اپنی بیٹی کا رشتہ من من میں ڈھونڈنے لگا، اس گاؤں میں اس گاؤں میں اپنے برابری کے لوگوں کو تلاشنے لگا فاطمہ کے لیے، لیکن رشتہ نہیں ملا۔ 2-4-10 دن گھوما، علاقے میں دیکھا، گلیوں میں دیکھا، شہر میں دیکھا، قصبے میں دیکھا، تعلقہ میں دیکھا، نہیں ملا۔ تو ایک دن اپنی بیٹی کو بلا کر کہتے ہیں، بیٹی، کہا کیا ہے بابا؟ کہا آج تک تم نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ بابا میری بھی کوئی تمنا ہے، میری بھی کوئی آرزو ہے۔ بیٹی تم نے آج تک کچھ نہیں کہا، صرف صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتی ہو، ہر وقت پہ نماز ادا کر لے۔ بیٹی تیری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، لیکن ایک بات بتاتا ہوں بیٹی، میں تیرے لیے 1 ہفتے سے دولہا تلاش رہا ہوں، داماد تلاشتا ہوں، لیکن میرے برابری کا کوئی نہیں مل پا رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ بیٹی تیری کیا پسند ہے ذرا یہ بتا دے۔ آج کی بیٹی تو فوراً کہتی، بابا میں موبائل میں جس سے بات کرتی ہوں ذرا اس سے بات کر لیں۔ ہاں، ماں باپ جو 18 سال تک بچی کو پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، وہ بچی کے لیے خراب سوچے گا کیا؟ لیکن نہیں، بچیاں سوچتی ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میری قوم کے دیالو مسلمانوں غور سے سنیے گا، نوح نے کہا کہ بیٹی تیری تمنا آرزو خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو باپ سے بیٹی کہتی ہے، بابا میری تمنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جس کو میرا دولہا بنائیں گے، جس کے ساتھ میرا نکاح کرائیں گے، میں اسے اپنا شوہر تسلیم کر لوں۔ لیکن پھر 2 ہفتے تک تلاشتا رہا، پھر نہیں ملا تو کہا بیٹی تیری کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہا بابا اب جب آپ نے میری تمنا پوچھی ہے تو سنیں، میری تمنا ہے میرے نکاح اس کے ساتھ ہو، میری شادی اس کے ساتھ ہو جس کے ساتھ جو 5 وقت نمازی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، تہجد گزار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ کہا بیٹی اور؟ کہا حلال خور ہو، واہ، وفادار رسول ہو، سبحان اللہ، جس کے اندر یہ ساری خصلتیں پائی جائے اسے آپ اپنا داماد بنا لیں۔ اب یہ نکلا، بہت اچھا، گیا مسجد میں، دیکھا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے نکلا، پوچھا بھائی ہر وقت پڑھتے ہو؟ کہا نہیں، ہفتے میں 1-2 بار آ جاتا ہوں۔ کہا تو لائق نہیں ہے۔ ایک کو دیکھا کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے لیکن حلال کی کوئی ضرورت نہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتا، کہ تو بھی نہیں چلے گا۔ ایک کو دیکھا سب کچھ ہے، وفادار رسول نہیں، کہا کہ تو بھی نہیں چلے گا۔ کافی پریشان ہوا، کہا بیٹی تیرے لیے تو شوہر تلاش کرنا بہت مشکل ہے، پورے شہر میں دیکھا، قصبے میں دیکھا، علاقے میں دیکھا۔ تو بیٹی نے کہا بابا غور سے دیکھا کریں، غور سے دیکھیں، کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ پھر باپ نے کہا بیٹی میں نے سب طرف تلاشا نہیں ملا۔ تو بیٹی نے کہا بابا ذرا اپنے گھر میں تلاش لیں۔ اتنا بڑا امیر کی بیٹی فاطمہ کہتے بابا متقی پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، متقی ہو، اس کے بعد وفادار رسول ہو، حلال خور ہو۔ تو باپ نے کہا بیٹی کس کی بات کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا بابا ہمارے گھر میں جو نوکر مبارک ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج اگر ہماری بیٹیاں یہ تصور کرے، ہماری بیٹیاں کہتی ہے جس کے چہرے میں داڑھی ہو وہ میرا شوہر نہ بنے۔ اگر فاطمہ کی طرح ہر بیٹی ہو جائے تو ہر نوجوان داڑھی رکھنے پہ مجبور ہو۔ ہر بیٹی جو ہے یہ کہے میرا شوہر میرے مصطفیٰ کا وفادار ہو، میرا شوہر حلال کھانے والا ہو، میرا شوہر 5 وقت کا نمازی ہو۔ لیکن آج تو ہماری بیٹیاں
हुस्न जिसका अच्छा हो, सिगरेट ज्यादा फूकने वाला हो, दो चार पेक लगाने वाला हो, सत्ते की दुकान में बैठे रहने वाला हो, ये अगर शोहर हो जाए, फोर व्हीलर में घुमाने वाला हो, पिक्चर दिखाने वाला हो, हमारी बेटियां ऐसे शोहर तराशती है। लेकिन फातिमा ने कहा नहीं नहीं बाबा, मेरे लिए वो शोहर हो जो 5 वक्त नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, सौम सलात का पाबंद हो, नबी का वफादार हो, हलाल खोर हो। बेटी कहाँ मिलेगा बाबा, गौर से देखें, हमारे घर में है। वाह वाह, बहुत खूब। बेटी कहाँ मैं जस्टिस साहब, कहाँ मैं उस कुर्सी में बैठने वाला और ये मेरे नौकर जो हमारे घर में कपड़े धोते हो, हमारे घरों में झाड़ू लगाते हो, हमारे खेतों में पानी देता हो, फलों को फूलों के जो है दरख्तों में पानी डालता हो, तुमने उसको पसंद किया। बेटी ने कहा बाबा मैं पैसे के बलबूते पे नहीं, क्योंकि पैसा रहने वाला नहीं है, दौलत रहने वाली नहीं है, शानो शौकत रहने वाली नहीं है, लेकिन मुबारक के पास जो है, अगर उसके पास रह गया तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मेरी बेटियों, आज के बाद अहद कर लो कि फातिमा की कनीजा हमें बनकर जिंदगी गुजारनी है। अल मुख्तसर इतनी है, अल मुबारक ने कहा कि हुजूर बुलाया जस्टिस साहब नू ने, ए मुबारक इधर आओ। मुबारक डर गया, कांपते हुए गया। हुजूर हर रोज तो मोहब्बत से बुलाते थे, आज ऊंची आवाज में आपने बुलाया है। नूह से कहा मुबारक ने, तो नूह ने कहा बेटे मुबारक तू अपने मुकद्दर पे नाज कर, जिस बेटी को मैं जिंदगी भर पर्दे में रखा, मेरी बेटी ने किसी को पसंद नहीं किया, सोमो सलात की पाबंदी की बुनियाद पर मेरी बेटी ने तुझे पसंद किया। आज हम होते तो मौज की लड़ाई होती, मेरे घर का नौकर मेरा दामाद बनेगा। हम फौकियत नहीं देते। तो नूह ने कहा हुजूर, अगर नूह से कहा मुबारक ने, हुजूर अगर आपकी बेटी मुझे पसंद करती है तो जरा मैं भी पूछ लूं, शायद आप मुझसे मजाक करते हैं। नूह ने कहा नहीं। तो मुबारक ने उसकी बेटी को बुलाया और मुबारक ने पूछा, ऐ फातिमा तूने मुझ में क्या देखा है, मैं तो तेरा नौकर हूं, मैं तो तेरे घर का गुलाम हूं, और तूने मुझे अपने जो है शौहर कबूल करने को तैयार है। तो फातिमा ने कहा तेरे अंदर मैंने कुछ नहीं देखा है, हलाल खोरी की वजह से और तहज्जुद गुजार की वजह से, वफादार रसूल होने की वजह से मैंने तुझे अपना शोहर तस्लीम करने को तैयार।